हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ 2 ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੀ ਇਟਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। The process of splitting up a vector into two or more vectors is known as the resolution of a vector। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਫॉर एग्जांपल ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ, दैट इज कॉल्ड ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਦ ਵੈਕਟਰਸ ਇਨਟੂ ਵਿਚ ਅ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਸਪਲਿਟਡ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਕੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨ, so this is the resolution of a vector. Next is resolution of a vector into two component vectors along any direction। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਅਲੋਂਗ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਆਰ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਓ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਉਹ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਓ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਓਪੀ ਵੈਕਟਰ। ਓਪੀ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਮ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਐਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਐਮ ਤੇ ਐਨ ਕੀ ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਮ ਟਾਈਮਸ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਮ ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਓ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਪੀ ਵੈਕਟਰ प्लस पी आर वैक्टर। OP vector, this is equals to OP vector plus PR vector. Fine. Now what is OR vector? OR vector की है small r vector equals to OP vector की है MA vector plus PR vector is equals to NB vector. Fine. This is the resultant, or this is the vector R is resolved into two components MA vector and NB vector. R vector ਨੂੰ resolve ਕਰ ਲਿਆ ਦੋ components MA vector and NB vector. Next is we have to show the resolution of vector R into two component vectors along the direction of vectors A vector and B vector is unique। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਮ ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਐਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਨੀਕ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਨੀਕ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰਸ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, m and n must be a unique pair of real numbers। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ m ਤੇ n ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਲੈਟ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਐਮ ਡੈਸ਼, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਪਲੱਸ ਐਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਐਨ ਡੈਸ਼, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ठीक है, सो ਆਪਾਂ कोई होर रियल नंबर्स ले लें m dash and n dash। r vector resultant vector equals to m dash a vector plus n dash b vector। now from see these two equations,
दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दोनों की लैफ्ट साइड सेम है आर वैक्टर क्योंकि दोनों की लैफ्ट साइड सेम है दैन की है दोनों की राइट साइड भी ईक्वल होएगी सो ये राइट साइड की है एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर ईक्वल्स टू की आ जाएगा ये राइट साइड पे एम डैश ए वैक्टर प्लस एन डैश बी वैक्टर फाइन नाउ हुण इत्थों की करना आप ए वैक्टर वाली वैल्यूज़ एक साइड लै जाओ बी वैक्टर वाली वैल्यूज़ एक साइड लै जाओ इत्थे देखो ए वैक्टर वाली वैल्यू इधर आके की माइनस होगी और बी वैक्टर वाली वैल्यू इधर आके की ए वाली इधर माइनस होगी इत्थों की बन जाएगा एम ए वैक्टर माइनस एम डैश ए वैक्टर दोनों चों ए वैक्टर कॉमन आ गया अंदर आ गया एम माइनस एम डैश ईक्वल्स टू इधर की आ गया एन डैश बी वैक्टर हाँ वाला प्लस 10 इधर जाके माइनस एन बी वैक्टर हो जाएगा की बन गया बी वैक्टर दोनों चो कॉमन कट के आ गया एन डैश माइनस एन इंटू बी वैक्टर ठीक है नाउ हम दो वैक्टर्स की कहते हैं हम ए वैक्टर ते बी वैक्टर के दो डिफरेंट वैक्टर्स ने ठीक है हम ये डिफरेंट ने पर इतने आप इक्वल टू द साइन पाया उदा आप कहता है वैक्टर्स इक्वल डिफरेंट वैक्टर्स ने पर इतने सेंटर साइन इक्वल आ गया मतलब यदा की हो गया कि आह वैक्टर ये इक्वल होएगा ये इक्वल होएगा कदों जो अपने को है जीरो वैक्टर्स होंगे जीरो वैक्टर्स इक्वल होंगे सो इसका मतलब की होना चाहिए है कि एम माइनस एम डैश इंटू ए वैक्टर एंड एन डैश माइनस एन बी वैक्टर आर जीरो वैक्टर्स जीरो वैक्टर होंगे जीरो वैक्टर कदों होंगे जो अपने को ए वैक्टर के नाल वाली वैल्यू की होएगी जीरो मतलब एम माइनस एम डैश इक्वल्स टू जीरो होएगा एंड बी वैक्टर के नाल वाली वैल्यू की होएगी जीरो मीनस एन डैश माइनस एन इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है हम इतने एम माइनस एम डैश इक्वल्स टू जीरो इतों एम की वैल्यू कढ़ लो आ माइनस एम डैश राइट साइड जाके की हो जाएगा प्लस एम डैश तो बन गया एम इक्वल्स टू एम डैश सिमिलरली इधर आ माइनस एन से इधर जाके की हो गया प्लस एन सो एन डैश इक्वल्स टू की बन गया एन हम आप दो डिफरेंट नंबर्स लाए सी एम डैश ते एन डैश जेडे कि एम ते एन तो डिफरेंट सी पर जो आप सॉल्व करके देखिए अपने को एम डैश एम दे इक्वल आ गया एन डैश की एन दे इक्वल आ गया यदा मतलब कि यूनीक नंबर्स ने ये मतलब जिन्ने मर्जी तुसी चेंज करी चलो नंबर पर वो एंड च आके क्या रिजल्ट सेम ही आ जाना है so there is one and only one way in which r vector can be resolved into two component vectors along the direction of two given vectors so ਇਹਦਾ मतलब है प्रूव हो गया भी रेजोल्यूशन की हुंदा वेक्टर्स दा यूनीक हुंदा है फाइन नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन पहला आप पढ़िया सी रेजोल्यूशन हो गया भी एक वैक्टर ਨੂੰ दो ਜਾਂ दो ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਇਨਟੂ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰਸ is called the rectangular resolution of the vector in a plane or two dimensions ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਬਟ ਇਨ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ठीक है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स वो दो वैक्टर्स जो दो वैक्टर्स स्प्लिट किया कहते दो वैक्टर एक दूजे के की है परपेंडिकुलर होंगे जिमें आप एक वैक्टर रिज्यूम किया आर वैक्टर ठीक है उन्होंने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स मतलब वो दो कंपोनेंट्स हो गए एक्स दे अलॉन्ग हो गया एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग हो गया एक हो गया वाई एक्सिस दे अलॉन्ग ठीक है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स स्प्लिट कर लिया सो आप वैक्टर रिज्यूम किया ओ आर वैक्टर ठीक है और उन्होंने स्प्लिट किया ओ पी वैक्टर एंड ओ क्यू वैक्टर दैन अपने को फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ की होएगा ओ आर वैक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा ओ पी वैक्टर प्लस ओ क्यू वैक्टर अगर तुम रिमैंबर किया होया पैरेललोग्राम लॉ की हुंदा लास्ट चैप्टर दैन वो अकॉर्डिंग की आएगा उधर रिलेशन के अकॉर्डिंग ओ आर वैक्टर इक्वल्स टू मतलब कि जो रिजल्टेंट होएगा इक्वल्स टू की होएगा ओ पी वैक्टर प्लस ओ क्यू वैक्टर ठीक है ना वॉट इज़ ओ पी एंड ओ क्यू ओ पी आप कह दें उसका मैगनीट्यूड इक्वल्स टू है एक्स इफ ओ पी इक्वल्स टू एक्स एंड ओ क्यू इक्वल्स टू वाई ओ क्यू की वैल्यू हैगी वाई एंड ओ आर वैक्टर की वैल्यू कितनी है आर वैक्टर ठीक है दैन अपने को वैल्यू की आ जाएगी देखो ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू वैक्टर की आ जाएगा इक्वल्स टू जिन्ना वो मैगनीट्यूड है मल्टीप्लाई यूनिट वैक्टर ये भी तुम यूनिट वैक्टर की डेफिनेशन किया होया ठीक है भी यूनिट वैक्टर की होंदा है जोड़ा वैक्टर है ओवर वो मैगनीट्यूड उत्थों आप कढ़ लें होंने ये तुम यूनिट वैक्टर की डेफिनेशन कढ़ के देखना उत्थों आप ही कर सकते हैं ठीक है ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू की आ जाएगा क्योंकि एक्स एक्स दे लॉन्ग है मतलब एक्स मल्टीप्लाई वो यूनिट वैक्टर एक्स आई कैप सिमिलरली वाई एक्स दे लॉन्ग जो वैक्टर है ओ क्यू वैक्टर इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई जे कैप वाई जे कैप ठीक है एंड ओ आर इक्वल्स टू किस आर वैक्टर ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है ओ आर वैक्टर की जगह आ गया आर वैक्टर इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर की वैल्यू पुट की एक्स आई कैप प्लस ओ क्यू वैक्टर की वैल्यू पुट की वाई जे कैप ठीक है सो दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ठीक है ऑफ आर वैक्टर हम कि दो कंपोनेंट्स ने एक एक्स आई वैक्टर है एक ये अलॉन्ग है एक्स वैक्टर के अलॉन्ग सो दिस इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वैक्टर एंड जो वाई जे कैप है की है
वाई कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ आर वैक्टर, इनू आप वाई कंपोनेंट बोल देंगे। नैक्सट इज अगर आप एंगल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रिजोल्व करना है, कंपोनेंट्स की वैल्यू कढ़नी है एक्स ते वाई पार्ट्स की, वो आप कहते हैं कि यह जो वैक्टर है ये की है, इट इज़ इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है, आप एक की है रेक्टेंगल ड्रॉ की इतने एंगल इतने हो गया थीटा, वो आप कॉस थीटा एंड साइन थीटा फाइंड करांगे। आह वाली जी अपने को ट्राइंगल है ये की है अपने को राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इतने की है 90 का एंगल बनेगा क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल कॉस थीटा ये आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये होएगा ओपी वैक्टर और हाइपोटेन्यूज की है ओ आर वैक्टर। कॉस थीटा इक्वल्स टू ओपी ओवर ओ आर, ओपी एंड ओ आर की वैल्यू पुट कर दो इन मैगनीट्यूड, ओपी की वैल्यू अपने को है एक्स, ओ आर की वैल्यू की है आर, ओ पी ओवर ओ आर आ गया इक्वल्स टू एक्स बाय आर। इतों आप एक्स की वैल्यू कढ़ लो, आर वाला कि इधर रखे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा कढ़ लेना है, वो की होएगा पी आर ओवर ओ आर, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो पी आर ओवर ओ आर उन्होंने वैल्यू पुट की वाई बाय आर, पी आर की वैल्यू अपने को जिन्नी की है ओ क्यू की वैल्यू है सेम आएगी, वाई इधर भी आ जाएगा वाई बाय हाइपोटेन्यूज कितना आर। सो वाई ओवर आर, इतों वाई की वैल्यू कढ़ लो, आर इधर रख के मल्टीप्लाई हो गया, वाई इक्वल्स टू की बन गया आर साइन थीटा। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज़ आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। नैक्सट इज़ यही आप कढ़ लिया इन्हों का एक्स ते वाई की वैल्यू कढ़ ली है। नैक्सट इज़ मैगनीट्यूड अगर आप कढ़ना है वैक्टर का, मैगनीट्यूड अपने को कढ़न के लिए की करांगे, अपने को राइट एंगल ट्राइंगल है, इतने पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम की होएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो ओ आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया इक्वल्स टू आ हो गया बेस ओ पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इतने हो गया पी आर का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देनी ने, आ स्क्वायर है इधर जाके की हो जाएगी स्क्वायर रूट बन गई, ओ आर इक्वल्स टू ये ओ आर की वैल्यू पुट करो इन मैगनीट्यूड आर आ गई, ओ पी की वैल्यू कितनी सी अपने को इन मैगनीट्यूड ओ पी इक्वल्स टू की एक्स एंड पी आर की इक्वल्स टू जिन्ना ओ क्यू सी मीनस वाई। सो अपने को मैगनीट्यूड आ गया आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिदा तुम हमने सैकेंड 2 डायमेंशन का किया आ सेम उदा ही 3 डायमेंशन का आ, जिमें वो पोजीशन वैक्टर कढ़िया सी आर वैक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये हम 3 कंपोनेंट्स आने, देखो इधर एक्स एक्सिस हो गया और इधर हो जाएगा वाई एक्सिस, उपर नू की हो जाएगा जैड एक्सिस, तीन आने इन्हों के कंपोनेंट वैक्टर्स की होंगे, यदा हो गया एक्स आई कैप, इधर नू हो जाएगा वाई जे कैप, इधर नू हो जाएगा जैड के कैप, ठीक है। सो द आर वैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप, ठीक है। 3 डायमेंशनस ने लिखी है, 3 कंपोनेंट्स आएंगे आर वैक्टर के, 3 कंपोनेंट्स डिवाइड होएगा। सिमिलरली वह मैगनीट्यूड कढ़िया सी आप कढ़िया सी हमने आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर 3 कंपोनेंट्स आ गए मतलब कि 3 डायमेंशनस आ गए, वो की आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर, दिस इज़ फॉर 3 डायमेंशनस। नैक्सट टॉपिक इज़ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के लिए अगर तो कंपोनेंट्स रिजोल्व करने आ गए है, ठीक है, दैन तुम की है इनू रीड करके की है इनू की खुद सॉल्व कर सकते, ट्राई करके देखना। जस्ट ये कंसिडर की किया होया एक्स वाई प्लेन है, वो अंदर एक ऑबजैक्ट कह लो कि मूव कर रहा है विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी, यूनीफॉर्म वेलोसिटी एक ऑबजैक्ट मूव कर रहा, आप कह दें कि एक पॉइंट से टाइम 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 टी तो ऑबजैक्ट की पोजीशन की है ए ते है, तो उत्थे वो कोआर्डीनेट्स की ने एक्स ते वाई, तो उत्थे वो पोजीशन वैक्टर की है ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू आर वैक्टर, एंड एट टाइम टी डैश मतलब कुछ टाइम के बाद ऑबजैक्ट के बी पॉइंट पर है, तो उत्थे वो पोजीशन वैक्टर की है ओ बी वैक्टर इक्वल्स टू आर डैश वैक्टर, तो कोआर्डीनेट्स की ने बी दे एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। दैन उस तो बाद की तुम इतने ट्राइंगल लॉ लगा के की है खुद डिसप्लेसमेंट वैक्टर फाइंड करके देखना, इनू ध्यान नाल रीड करके इतों देख के खुद डिसप्लेसमेंट वैक्टर फाइंड करके देखना, अपने नोटबुक्स से सॉल्व करके देखना है। फिर यूनीफॉर्म वेलोसिटी के लिए की यूनीफॉर्म वेलोसिटी के लिए तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला ला देना, वेलोसिटी का फॉर्मूला की होंदा है चेंज इन डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, वो करके देखना है सॉल्व करके। उस तो बाद ठीक है देखो इदा किया है जो चेंज इन डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम के लगा लिया फॉर्मूला, नीचे वाली पार्ट के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस तो बाद इतों की आह माइनस आर इधर जाके प्लस हो गया, इदा बन जाएगा सेम इदा ही की है। नैक्सट है वैन द मोशन इज़ विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी, कॉन्सटेंट वेलोसिटी के लिए तुम की करना पहले एवरेज कढ़ लेनी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम चेंज इन डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम हो गया, ठीक है। फिर उस तो बाद नैक्सट जिमें एक्सलरेशन का की होंगे हम अपने को चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इतों सेम उदा ही वी डैश माइनस वी कढ़ लेनी है, आह सारा इधर जाके की है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतों वी डैश की वैल्यू कढ़ लेनी है, ठीक है। फिर जिमें आप इतों हम कढ़िया है सेम इदा ही इतों कढ़ लेना है,
ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के रिलेशन तो आप फॉर्मूला कढ़ लाँगे। फिर एवरेज वेलोसिटी का अपने को ये भी होंगे कि मीन वेलोसिटी अगर आप कढ़नी है दैन उन्होंने प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 जिन्नियां वेलोसिटीज़ ने उन्होंने प्लस करके डिवाइडेड बाय जिन्ना नंबर है मतलब किन्नियां वेलोसिटीज़ ने 2 ने तो उन्होंने प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 फिर एवरेज की वैल्यू पुट कर देनी है। उस तो बाद इन्हू सॉल्व करके की आप आर डैश कढ़ लैनी है। ठीक है। ये सारा टॉपिक है तुसीं खुद सॉल्व करके देखना रिवाइज करना है। लास्ट ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ मतलब कि एक ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਮੇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਯੂ ਵੈਕਟਰ ਡੀ ਪਲਸ ਹਾਫ ਏ ਵੈਕਟਰ ਟੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲਸ ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्स ਤੇ वाई ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਯੂ ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲਸ ਯੂ ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ ਐਂਡ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये तीनों वैल्यूज़ आर यू तो ए वैक्टर तीनों वैल्यूज़ पुट करके उन्हें सॉल्व करके अपने को ठीक है आह दो अलग अलग इक्वेशनस आ जाएगी। आ इक्वेशन बनेगी। उस तो बाद तुसीं की करना इन्होंने सॉल्व करके आई कैप वाले कंपोनेंट्स सारे कंपेयर करके उत्थों इक्वेशन बन गई। जे कैप वाले कंपोनेंट्स अलग कंपेयर करके अपने को आह इक्वेशन बन गई। ठीक है। इन्होंने ट्राई करके देखना सारा सॉल्व करके। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? Any object projected into space or air such that it moves under the effect of gravity alone is called a projectile। projectile की ਹੁੰਦਾ कहते कोई भी ऑब्जेक्ट की है एयर च की है प्रोजेक्ट किया जाता मतलब ऊपर सुट्टिया जाता है या फिर उपरों की है नीचे सुट्टिया जाता है सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो वो कहते जो उन्होंने एक बार थ्रो करते हैं प्रोजेक्ट करता वो की है ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करता है। जिमें तुसी कोई बॉल थ्रो करते हो ठीक है या फिर बैडमिंटन जो खेडते हो तुसी शटल नूं थ्रो करते हो वो मोशन जिहड़ा हुंदा वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है। या फिर तुसी कोई भी हाई जंप हो गया या कोई भी इदां दी गेम हो गई है ना जैवलिन थ्रो करते हो डिस्कस थ्रो हो गई वो की हुंदी है अपने कोल वो प्रोजेक्टाइल मोशन हुंदा है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। जिहड़ा पाथ कहंदे वो फॉलो करदा वो की हुंदा ट्रैजेक्टरी हुंदा है। Examples की ने a bullet fired from a gun, shell fired from a cannon, a javelin or hammer thrown by an athlete, stone thrown from the top of hill or tower। all are these projectile paths। ठीक है। और ਜਿਹੜਾ ਵੀ path ਉਹ follow ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ projectile। ठीक है। और ਜਿਹੜਾ path follow ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ trajectory। ਹੁਣ ਇਹਦਾ motion projectile ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ motion along horizontal path with uniform velocity, motion along vertical path under gravity that is with uniform acceleration equal to g। कहते जो हॉरिजॉन्टल पाथ होएगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग मोशन कदों होएगा यूनीफॉर्म वेलोसिटी होएगी हमेशा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होएगी यूनीफॉर्म वेलोसिटी होएगी। और जिहड़ा वर्टिकल पाथ होएगा वो की होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन होएगी दैट इज इक्वल्स टू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट उपरों दी नीचे मूव करे वर्टिकल मोशन हो गया हो गया जी दे ग्रेविटी के अंडर काम करेगा। और जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो की है यूनीफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है। नाउ विल डिस्कस दीज टू मोशंस। नैक्सट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ਹੁਣ हॉरिजॉन्टल ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल का मोशन की होएगा दी इक्वेशन की होएगी वो फाइंड करनी है। आप अज्यूम कर लें कि ओ पॉइंट आ ग्राउंड से उत्थों की आप एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जिवें तुसीं कोई बॉल थ्रो की इदा उपर इदा थ्रो की वो बाद चों कि आपे डाउनवर्ड डायरेक्शन च आ जाएगी क्यों ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। दैन आप अज्यूम कर लें कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया विद वेलोसिटी यू। ठीक है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है। दैन उस तो बाद आप कहने कि इन्हें इतों की पूरा डिस्टेंस जो नीचे आ गया तक कवर उन्हें किया डिस्टेंस आर ये आप गलबात जो करेंगे। पहले आप स्टार्ट इतों करते हैं यू वेलोसिटी सी स्टार्टिंग च। ठीक है। एंगल थीटा मेक करे सी हम आप पढ़िया या भी रिजोल्व किदा करना होंगे। पहले तो आप यू नू रिजोल्व करेंगे वैक्टर में एक्स से वाई कंपोनेंट्स एक्स हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी यू एक्स और वर्टिकल के लॉन्ग कितनी होगी यू वाई। ठीक है। एंगल थीटा है सो आप पढ़िया होया स्टार्टिंग के भी रिजोल्व किदा करना है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगी यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी होगी यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ठीक है। स्टार्टिंग सब तो पहले आप मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल देखते हैं उदा ही है जिमें हुणे आप लास्ट वाला प्रोजेक्टाइल का किया। ठीक है। वो भी की सीगा आप इक्वेशन लेंदे सी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग आप इक्वेशन लैनी है एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। ए एक्स टी स्क्वायर।
उस तो बाद हुण वैल्यू पुट कर देनी है एक्स अपने को इधर नूं डिस्टेंस हो गया, ਆਪਾਂ एक पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, ठीक है। एक्स ਦੇ ਲਈ हॉरिजॉन्टल ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ हॉरिजॉन्टल एक्स ਤੇ वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया वाई, ठीक है। सो एक्स ਨੂੰ एक्स लिखिया यू एक्स, इधर ਨੂੰ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी सी यू एक्स इज यू कॉस थीटा, ठीक है। यू एक्स इज यू कॉस थीटा ए एक्स, हुण यूनीफॉर्म वेलोसिटी ਨਾਲ अगर वो मूव कर रहा तो उसकी एक्सलरेशन हो जाएगी 0 अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। सो ए एक्स इक्वल्स टू 0, ये सारिया वैल्यूज ये पुट करती हैं अपने को। इतों देखिए टी की वैल्यू आ गई एक्स बाय यू कॉस थीटा इक्वल्स टू की है टी, अपने को एक इक्वेशन आ गई। नैक्सट इज सेम मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, हम वर्टिकल के मोशन के लिए आप कहने नैक्सट एक पॉइंट कोई है, फिर ही वी पी पॉइंट है, इतने डिस्टेंस कितना कवर किया वर्टिकल वाई, ठीक है। सो वाई डिस्टेंस हो गया वह यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यह इक्वेशन सी यू वाई मतलब कि इनीशियल वेलोसिटी ਉਹਦੀ वर्टिकल वाल उपर ਨੂੰ नहीं थ्रो किया इधर ਨੂੰ थ्रो किया। सो स्टार्टिंग वर्टिकल वेलोसिटी ਉਹਦੀ किन्नी सी जिन्ना ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ इधर ਨੂੰ, किन्ना ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ यू वाई इज यू साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाल ਨੂੰ किन्ना सी यू एक्स यू कॉस थीटा ਤੇ वर्टिकल कंपोनेंट ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ यू साइन थीटा। सो यू वाई इज इक्वल्स टू ਕੀ आ जाएगा यू साइन थीटा। नैक्सट इज ए वाई, हुण ऑबवियस है ए वाई ਉਹਦੀ एक्सलरेशन मतलब कि हुण वाई कंपोनेंट वर्टिकल ਦੇ लॉन्ग एक्सलरेशन कितनी होगी जब नीचे जा रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटी थ्रो आप उपर ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ गया हो नीचे डायरेक्शन ओपोजिट होगी, तो ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी। वो वैल्यूज़ हम सारिया पुट करके अपने को नैक्सट इक्वेशन आ गई वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नैक्सट इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फाइंड करने के लिए करना यही जी इक्वेशन है ये आप टी की वैल्यू पुट करनी जी आप पहला सॉल्व की है, टी की वाली वैल्यू ये सॉल्व करके अपने को आंसर, ठीक है। अपने को इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इतों अपन की पता लगता है कि यह की पैराबोलिक पाथ कवर करता है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू ग्राउंड, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ਨੂੰ ग्राउंड ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी मतलब कि किन्नी देर वो कहते एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, दैट इज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। दैन हुण ਉਹ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ वर्टिकल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟੀ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ, ठीक है। हाइट ले ली मैक्सिमम हाइट वो ए बी भी इन्नी इन्हें मैक्सिमम हाइट कवर की, तो ओ तो ए तक की है डिस्टेंस अगर टोटल टाइम टी है सेंटर पॉइंट तक उन्होंने हाफ टाइम लगे, इधर टी बाई टू इधरों की इधर भी कितना हो जाएगा टी बाई टू, हाफ ऑफ टाइम लगे, ठीक है। दैन वो हम वर्टिकल कंपोनेंट अज्यूम करते हैं, आप कहने अगर ए पॉइंट आ गया मैक्सिमम हाइट आ गई, हम इतने आगे अगर आप देखा इतों की वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई की हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्यों क्योंकि इतने पहला हॉरिजॉन्टल मूव करेगा फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। सो इस केस के वी वाई की हो जाएगी, आप इक्वेशन हाँ ले ली यदि वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इक्वेशन ऑफ मोशन है वी वाई अपने को हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये क्या जिमें ये की होएगा थोड़ा हॉरिजॉन्टल मूव करेगा पहला, तो इस केस के स्टार्टिंग जिथे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होएगी। सो वी वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड यू वाई पहले ही सीगा यू साइन थीटा, ए वाई की आ जाएगा माइनस जी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है वो, ठीक है। दैन टाइम कितना आ जाएगा अपने को ए पॉइंट तो क्यू तक कवर करने लिए टी बाई टू हाफ टाइम हो गया, ठीक है। टोटल का टी बाई टू ये सारिया वैल्यूज़ पुट करके अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट कढ़ लेनी, मैक्सिमम हाइट जिन्नी कहते ग्रेटेस्ट हाइट है जिन्नी प्रोजेक्टाइल ने किया रेस किया गया, मतलब आ हाइट एच फाइंड कर लेनी है। वर्टिकल है तो वर्टिकल का फॉर्मूला लगा के वर्टिकल डिस्टेंस का वैल्यूज़ गिवन जरिए है पुट करके उतों एच कढ़ लेनी है। नैक्सट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जितों स्टार्ट होया उतों की लैके जिथे तक की है पार्टिकल ग्राउंड पर वापस आ गया है उतों तक तक दैट इज़ रेंज, ठीक है। दैन वो रेंज कढ़ लैनी है, ये की होंगे एक तो नाल डिस्टेंस होंदा है, ठीक है। डिस्टेंस अपने को की होंदा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। मतलब हुण इत्थों दी इत्थे तक वेलोसिटी इधर नूं की होगी अपने को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल दी वेलोसिटी की है यू कॉस थीटा इंटू इत्थों दी तक टाइम कितना लगे अपने को टी। सो अपने को आ जाएगा रेंज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, इन्ना आ गया। इत्थों टी टाइम ऑफ फ्लाइट की तुसीं वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। उस तो बाद सॉल्व करके अपने को आर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली नैक्सट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कढ़ लेना है, उस तो बाद नैक्सट टॉपिक, ठीक है। इनू सारे खुद रिवाइज करके देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का।